اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ عید مبارک۔ عید الاضحیٰ آج ہو گئی، کہتے ہیں 3 دن چلے گی۔ ہم نے قربانی کر دی، ہم سے مراد سب لوگوں نے جو استطاعت رکھتے تھے انہوں نے قربانی کر دی۔ ہم نے جو قربانی کی، جو ہمارے سامنے مقصد نظر آتا ہے، سنت ابراہیمی ادا کر دی ہم نے۔ ذبیحہ عظیم جو دیا گیا فدیہ کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، وہ بھی ہم نے پورا کر دیا۔ بھیڑ بکری، دمبا، بکرا، اونٹ، گائے، بیل، جو کچھ بھی میسر ہوا ہم نے بڑھ چڑھ کر وہ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا کام کہ ہم اسے کیا سمجھ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یا یہ اب کہیں کہ ہم نے تو قربانی کر دی، اللہ اسے کیا سمجھے گا یا کیا سمجھتا ہے۔ اللہ نے اب بتانا تو نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ڈالنا تو نہیں ہے، وہ تو بتا چکا ہے پہلے۔ کہاں بتا چکا ہے؟ وہ قرآن میں بتا چکا ہے۔ قربانی وہاں سے ہی ہم نے لی، اس کو جو اس کی ریورس انجینئرنگ کریں تو پھر ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اب کیا چاہا، اللہ اب کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جو قرآن کہتا ہے وہی سمجھے کہ اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے یہ عمل قرآن کے مطابق کیا ہے تو اوکے فائن، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی عمل سے لے کر چلیں۔ اس میں نقائص تو ہوتے ہی ہیں نا، ہمارا کوئی بھی عمل اس طرح پرفیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور میں روزے کی مثال دوں، روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس کے لوازمات جتنے بھی ہیں صبح سے شام تک پورے کرنے ہیں، تو کوئی نقص عمل میں رہ جاتا ہے نا۔ اب ناقص بھی عمل ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے۔ اپنے تائیں ہم نے بھرپور لوگوں نے جو بھی ہے وہ کوشش کی اور خوش ہو گئے اس معاملے میں کہ ہم نے یہ فریضہ ادا کر دیا۔ مگر میرے بھائیوں، اگر وہ عمل ہی کچھ اور ہو، زمین و آسمان کا آپس میں فرق ہو ہمارا کرنے کا اور جو اللہ کو مطلوب ہے یا اصل میں جو بنتا ہے، تو پھر وہ ہم کا مطمئن ہو جانا، اسے کیا کہیں گے ہم؟ اس پر ہم مطمئن ہو گئے۔ یہ بقرہ کی 216 نمبر آیت وہی ہے نا جس میں جو تم پر فرض کیا ہے مگر وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ اتنی بات کر کے آگے اصولی بات بیان فرما دی کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بہت اچھا عمل کر دیا، مگر وہ عمل اس معیار پر پورا اترنا درکنار، مطلب بالکل اس کے خلاف ہو، یہ کیسی بات ہوگی؟ آپ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال قربانی پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، میرے کچھ کو 8-10 دن پہلے کی، یہ آپ کو ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو میرے اس مل جائے گی میرے چینل پر۔ تو آج پھر دوبارہ میں نے تھوڑا سا کہا کہ یہ اس کو تازہ کر دوں، تجدید کر دوں، کیونکہ موقع ہے عید کا۔ اب تو گزر گئی، بہت سارے لوگوں نے قربانی کر بھی دی، اور کچھ کے گھر رہ گئی وہ کل کر لیں گے، کوئی پرسوں کر لیں گے۔ ہم اپنے کھانے پینے کا بھی رہیں جس طرح ہی کر لیتے نہ چلیں، آج ایک بھائی نے کر لیا، دوسرے نے کر لیا، گوشت آج ہو گیا، کچھ کل مل جائے گا کھانے کے لیے، فریجیں بھرنے کے لیے بھی ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ علماء جائز بھی قرار دیتے ہیں، یہ قربانی سارے ایک گھر والے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ان کی تعداد زیادہ ہو، وہ الگ کہانی ہے۔ میں تھوڑا سا صرف اس کی تجدید بات کی جو پہلے کی ہوئی ہے، کہ جو ہم نے کی ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے قربانی کر دی، اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے، وہ بات میں ذرا اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، سمجھتا ہے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے وہی وہ سمجھتا ہے، اس کا تو وہاں سے ہی پتہ چلے گا۔ اور بھی قرآن میں جیسے میں نے سورۃ بقرہ کی 216 نمبر آیت بتائی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے مال تمہاری نگاہوں میں اچھے کر دکھائے۔ اللہ نے اچھے کر دکھائے بھی آتا ہے، اور شیطان نے وہ مال تمہاری نگاہوں میں اچھے کر دکھائے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ سورۃ کہف کی 102 اور 103 نمبر آیات دو ہیں، وہ تو بڑی ہی زبردست ہیں اس حوالے سے، وہ صرف اس ریفرنس سے۔ ویسے تو وہ الگ ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گی سب سے بڑھ کر خسارے والے لوگ کون ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے اور خود ہی آگے جواب دیتا ہے کہ وہ جو ان کی زندگی ساری کی ساری اس دنیا میں گزری، یعنی کہ دنیا کے لیے گزر گئی، کوئی آخرت کی بات نہیں۔ وہ یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے کہ اسی تگ و دو میں گزر گئی، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس بدن کو بنانے کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے،
इसी दुनिया की जिंदगी को ही जीनत बख्श और बेहतर और जन्नत बनाने के लिए ही गुजर गई, और वो समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आगे उस आयत के आखिर में, और वो ये भी समझते हैं कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ ये आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए अब तो गुजर गया। और मैंने अगर जो पहले भी बात की है तो वो भी पता नहीं 100-150 लोगों ने बात वो सुनी है, लेकिन कौन अमल करता है? हमने खुद की है कुर्बानी। खैर मतलब इसमें कोई दिखावा नहीं, सभी करते हैं। कुछ चीजें माशरे में ना रस्म और रिवाज ऐसे होते हैं कि वो बड़े भारी होते हैं, वो बड़े ताकतवर होते हैं, वो आपको करना पड़ते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे ये बहुत बड़ी एक ताकत है, ये जुमला है लेकिन है बहुत बड़ी ताकत। आप माशरे के रस्म रिवाज से हट के कुछ नहीं करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सवालात उठेंगे उस पर, ये क्या बात है। हम मिलते हैं ये तो यही सवाल ही पहले होता है, क्या किया जी, कुर्बानी क्या है, हाँ जी, या कहाँ नमाज पढ़ी तुमने। तो ये चीजें होती हैं। खैर मैं वही बात, तो सवाल ही है मेरा कि हमने कुर्बानी कर दी, अल्लाह उसको क्या समझता है, अल्लाह उसको अब क्या लेता है, ये इसका पता करना है तो इसका पता आपको कुरान पाक से पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था, क्या हुक्म है। और अगर उस तरह हुआ चले फिर ठीक है, नाकस होना, उसका कम दर्जे होना वो अलग बात है, वो अब हर अमल में हो सकता है जिस तरह कभी आपने अदा किया है। इसमें मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुअय्यन कर दिया है मुकाम कुर्बानी का। तो वो अगर वो मुअय्यन कर दिया कि फलान जगह ही होनी है, तो फिर बाकी जगह पर की हुई कुर्बानी की क्या हैसियत है। एक तो हैसियत को ले, ठीक होगी बात। दूसरा वो कुरान के उलट होगी बात, आप कुरान के खिलाफ होगी बात। कुरान ने किसी एक चीज मुतय्यन कर दी, हमने उसको आम कर दिया, फिर ये कुरान ये सारा कुछ क्या हो गया, कुरान के खिलाफ चलेगी सारी की सारी बात। फिर अल्लाह इसको क्या समझेगा भी, तुम्हारी कुर्बानियों को जो तुमने सारी की हैं या हमने की है, मैंने की है, जिसने की है, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्या समझेगा। आप खुद अंदाजा लगा ले कि जब उसने इसको मुअय्यन कर दिया, जगह मुअय्यन कहाँ की है जगह, ये उसने सूरत हज की 33 नंबर है, इसमें मुअय्यन कर दी। बात तफसील से पहले कर चुका हूँ, आपने सुननी हो देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। ये लाकुम फीहा मनाफिउ एला आजा लिमो सम्मन सुम्मा महिल्लोहा एलल बैतिल अतीक। इन जानवरों में तुम्हारे लिए एक मुद्दत मुअय्यना तक फायदा उठाना है, इसके बाद उनके हलाल करने की जगह बैत अतीक, खाना काबा के करीब, खाना काबा को बैत अतीक भी कहते हैं, बैत अतीक भी कहते हैं, यानी कि उसके करीब है। ये है कुर्बानी की जगह। अगर उस जगह पर कुर्बानी हुई तो वो कुर्बानी है, जिसे हम सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं, और वो ज़बीहा अजीम कहते हैं। इस्माइल को देकर बचा लिया अल्लाह ताला ने, क़यामत तक ये देते रहेंगे, करते रहेंगे। ये है जी जगह, ये मुअय्यन कर दी। नमाज के लिए सम्मत मुअय्यन है ना, मगरब की तरफ, यहाँ से मगरब बनता है, यानी किबला काबा की तरफ। अगर आम कर दें जिस तरह मर्जी मुंह करके, हर तरफ ही अल्लाह है ना, कोई अल्लाह मगरब की तरफ जरूरी ना अल्लाह है, मशरक की तरफ नहीं है, शुमाल की तरफ नहीं है, जनूब की तरफ नहीं, हर तरफ है, हर तरफ वो बराबर है, कहीं कम कहीं ज्यादा तो अल्लाह नहीं है। तो फिर क्या ये इस तरह हमारी नमाज हो जाए, कभी हो जाएगी अगर कोई कहे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैतुल्लाह की तरफ जी मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब कोई बंदा कहे जी आप बैतुल्लाह की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे हैं, तो हम उधर बैतुल्लाह कह रहा हूँ, बैतुल मकदस की तरफ, बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी, इसलिए कि मुअय्यन हो गई है। और इसी तरह ये कुर्बानी भी मुअय्यन हो गई है मेरे भाइयों। ये मैं बात इसमें अर्ज करना चाहता था। और देखें इसकी एक और बड़ी शानदार बड़ी सारी मिसाल है, जो जब फतह सुलह हुदैबिया के मौके पर, उस वक्त क्या 48 नंबर ये सूरत है, सूरत फतह, 25 नंबर इसकी आयत है। हुमुल्लज़ीना काफरू व सद्दूकुम आनिल मस्जिदिल हराम व हदिया मकूफन अय्यब लोगा महिला, ये 25 नंबर है। यहाँ हदिया, ये हदिया को हम कुर्बानी लेते हैं मानी। ये कुरैश मक्का वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, नीज कुर्बानी के जानवरों हदिया को रोक दिया कि वो अपने हलाल होने की जगह तक ना पहुंच सके। सुलह हुदैबिया की ये बात हो रही है। उस वक्त जानवर थे वहां जाकर ज़िबा करने थे, उनको भी रोक दिया, ये कुरान कह रहा है, यानी कि वो जगह
मुतय्यन है, मुअय्यन है। ये मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये देखें फिर जो कुछ किया है इसी तनाजर में कि अब अल्लाह उसको क्या ले रहा है, क्या लेगा। ये इसकी अब जो करने वाले लोग हैं उनके यहाँ भी दलील है। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई दलील उलमा कराम ने नहीं दी तो वो उस पर किए जा रहे हैं, फिर भी अंधाधुंध ये मामला चल रहा है। एक तो बड़ा अजीब सा मामला, इसमें बड़ी छोटी सी बात ही होती है कि इसमें ये उलमा कराम मदारस का बहुत बड़ा फायदा है। साल में ज़कात इकट्ठी करना रमज़ान शरीफ में, और ये कुर्बानी के मौके पर खाने इकट्ठी करना, ये एक बहुत बड़ा इनका आमदन का जरिया है। आमदन के जरिए पर तो कोई एतराज नहीं। तो फिर ये इस तरह इनको मुयसर आता है कि ये जिस तरह ये सिलसिला घर घर गली गली कुर्बानी हो रही है, और वो अपने तौर पर बहुत सारे भर लेते हैं मदरसों में, और फिर लोगों को हिस्सा डालने की तरगीब देते हैं, और लोग हिस्सा डालते हैं, और वहाँ गोश्त होता है। जो भी है, ये उनकी कुर्बानी का एक कुर्बानी बहुत बड़ा जरिया है आमदन का, माश का। तो वो इसको क्यों इनकार करें हैं। इसमें जरा बारीकी से आप देखें तो बड़े बड़े मदूदी साहब और दूसरे लोग, मतलब इन लोगों, हम सब में नफ्स लगा हुआ है, हम सब की कमजोरियां हैं, नफ्स की कमजोरियां हैं, और देखना है इसको किस तरह चलाना है, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम कोई बनी इसराइल से कम नहीं है। बनी इसराइल नाफरमान तरीन कौम थी, जितनी भी कौमें हो गुजरी हैं, सबसे ज्यादा अंबिया करा उस कौम में आए, बनी इसराइल में आए। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि हम कोई उनसे कम नहीं है, हमारा भी वही आलम है। तो खैर उनके यहाँ जो दलील, जो जो लोग कुर्बानी ये करते हैं, जायज कराते, यही सबसे ज्यादा गालिब है, कर रहे हैं। उनकी दलील जो है वो उसके लिए सिर्फ 2 आयात है, कहती बहुत होती है बात को, अपनी बात को मनवाने के लिए, जिसमें 2 टोक बात आ जाए। जिस तरह ये मैंने ये बात बताई है आपको, ये इसकी जो है हज की 22 नंबर हज सूरत है, और 33 नंबर आयत में जगह मुतय्यन कर दी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी और जगह अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए आम कर दिया हो, तो ये तो तजाद होगा। कुरान पाक में तजाद हो नहीं सकता। सूरत 82 82 नंबर आयत है निसा की। तो ये कुरान में तजाद, अल्लाह के कलाम में कलाम में तजाद महाल है। यही वो दलील देता है अपने कलाम होने की, क्योंकि बशर का कलाम कहते हो कि मोहम्मद ने गढ़ लिया अपनी तरफ से, तुम भी जाओ गढ़ ले, इस तरह का ले आओ, तुम्हारे पर तुम नहीं कर सकोगे। ये भी साथ चैलेंज कर दिया कि अल्लाह के कलाम में तजाद महाल है, तजाद नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है किसी और जगह पर अल्लाह ताला ने इसको आम कर दिया हो। लेकिन हमने जी खींच खांच के उसको कर दिया। कौन सी आयत है ये? सूरत अनाम की 162 और 163 नंबर आयत है। 162 ही समझे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व आना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो मेरी नमाज, मेरा नस्क, नस्क इसको ऐसे ही रहने दे, क्योंकि ये अबुल कलाम आजाद साहब का तर्जमा है, उन्होंने इसको नस्क ही रहने दिया। मेरा मरना, यानी कह दो मेरी नमाज, मेरा नस्क, मेरा मरना, मेरा जीना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है और मैं मुस्लिमों में यानी अल्लाह के फरमा बरदारों में पहला फरमा बरदार हूँ। ले जी, इस यहाँ से 900 की मांग लेते हैं जी कुर्बानी। और इसमें मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसके मुख्तलिफ तराजम जो मुफस्सर हैं उन्होंने मुख्तलिफ इसके लिए हैं मानी लिए हैं 900 के। अगर जो जो मुख्तलिफ लिए हैं, जहाँ गंजाइश है कि वहाँ मुख्तलिफ मानी लिए जा सकते हैं और लिए गए हैं, उसको आप कतई तौर पर जो दलील है वो नहीं मानी जा सकती कि इससे मुराद यही कुर्बानी आम कुर्बानी है। लेकिन इससे ये तो साबित बिल्कुल ही नहीं होता कि जिस तरह हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर कुर्बानी करते हैं। लो जी, ये है एक दलील इस आम कुर्बानी करने की जो उसकी बनती नहीं है। ये तफसील से मैं बात पहले कर चुका हूँ। 900 के मुख्तलिफ उलमा कराम ने जो इसके मानी लिए हैं, जो उसका कहा गया है। एक तो उन्होंने ये बयान फरमाया है, इसका जो जो कुर्बानी करते हैं वो इसको दलील के तौर पर इसको लेते हैं, जिसके कई मानी बनते हैं। हालांकि 900 का और मानी भी है, वो बाल मंडवाने वाली याद सूरत बकरा की 196 नंबर आयत में ना मंडवा सको तो फिर वो वहां 900 की वो तो वहीं करनी है ना, जगह तो वही बनी है उस 900 की। कहते हैं कि और जगह पर भी 900 की आया तो वहां आया है कि वो 900 की कमानी कुर्बानी लिया गया है, तो वो तो कुर्बानी वहीं बनती है।
एक ये आयत लेते हैं, दूसरी आयत लेते हैं सूरत कौसर की, फसल रब्बे का वनहार। मैंने दो आयात, ये नाम की 162 और सूरत कौसर की ये फसल रब्बे का वनहार, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। वहां देख लें नमाज फर्ज है, कुर्बानी को कोई फर्ज नहीं करा। वहां तो फिर फर्ज हो गया, अगर सलाद फर्ज है तो वहां नहर भी फर्ज होगी। तो नहर क्या है, वो तो वहां सिर्फ अगर उसको कोई बहुत मानी ना ले, कोई लंबे चौड़े, अरबी में बहुत सारे लफाज के आगे बहुत सारे मानी निकलते हैं, लेकिन रूट होता मादा होता ना ले, नहर करवा ऊंट की कुर्बानी, नहर खालिस्तन ऊंट की कुर्बानी के लिए आता है या आया है या लिया गया है, तो फिर ऊंट की कुर्बानी करें, फिर बाकी क्यों करते हैं। जी जो ये दो आयात, इसका मैं जिक्र ऑलरेडी आपके सामने कर चुका हूं। तो बस मैं यही मेरे भाइयों आपके सामने ज्यादा मेरा मकसद यही था। एक और चीज की भी थोड़ी सी गलत फहमी वो भी मैं अर्ज कर दूं कि जब मेरी ये वीडियो मैंने लगाई तो उस वक्त को उसमें कुछ जमात सलामी वालों ने इतराज किया, एक दो दोस्तों ने कुछ ने कहा कि तुम्हें रेफरेंसिंग देना नहीं आता, तुम्हें रेफरेंस का ही नहीं पता, तुमने मार्फुल कुरान का रेफरेंस दे दिया। मार्फुल कुरान तो तकी उस्मानी साहब का है, तो मदूदी साहब ने वहां कैसे लिख दिया। मैं उनको हवाला दिया था वो एक और चीज के मुवाजने में कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ये जो दलील दी कुर्बानी की उसमें वो उन्होंने अर्ज किया फरमाया था ताकि उनका कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब ये मतवातर से चला आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है अमल, तो कैसे हो सकता है कि सारी उम्मत मुनाफिकों में हो जाए, इसके खिलाफ किसी ने आवाज ही ना उठाई हो और सब ने हदीसें गड़ गड़ कर इसकी हमायत में इकट्ठी कर ली हो, और ये कैसे हो सकता है। एक इसका हवाला मैंने ये दिया था मार्फुल कुरान का, तारीख रसालत अनवान है हजरत इब्राहिम, और दूसरा हवाला मैंने साथ ही दिया था जो उसके अपोजिट है कि मदूदी साहब ने क्या फरमाया था कि असल इस्लाम जहली इस्लाम में किस तरह मुंतकिल हुआ। मुझे तो वो अपनी जगह बात, मदूदी साहब का यही कमाल है, दो मतजाद चीजों को इस तरह मंतक की मुशगाफियों से साबित कर देंगे कि वो दोनों ही दुरुस्त करार पाएंगी कि उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर ये जिसमें असल इस्लाम जहली इस्लाम में दाखिल हुआ वो है हवाला बरेली का अरसाला अल फुरकान बरेली के शाह वलीउल्लाह नंबर में मनसब तजदीद की हकीकत, ये मदूदी साहब ने मजमून लिखा और उसमें ये लंबा चौड़ा इक्तबास है कुछ चंद सफरों वाले। ये भी प्रोपेगेंडा करने का तरीका होता है, जिस तरह अब सोशल मीडिया पर होता है, किसी बंदे के चंद जुमला भी मुकम्मल नहीं होता, चंद अल्फाज को पकड़ा और उसको उसके ऊपर लगा दिया, कट करके वहां लगा दिया, देखें ये क्या कह रहा है। ये इंतहाई घटिया तरीका है प्रोपेगेंडे का। इसको मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम उसका जुमला तो मुकम्मल करने दें, वो जो वजाहत कर रहा है उसकी वजाहत तो होने दे। ज़ाहिर है मैं इमरान खान के हवाले से बात करता हूँ, उसकी इस तरह छोटी छोटी बातें काट के, वो को आलम नहीं है, कोई लफ्ज अरबी के मेरी तरह वो भी कोई सही नहीं बोल सकता, नहीं बोले गए होंगे, तो उनको उतना सा काटा और लगा दिया। ये घटिया तरीका प्रोपेगेंडे का। बहरहाल यहाँ इन्होंने मुझ पर यह एतराज किया कि ये आपने रस्सा ठीक नहीं दिया। ये जो फरकान है बरेली शाह वलीउल्लाह नंबर मनसब तजदीद की हकीकत, इस पर कोई बात नहीं की। ये है असल इस्लाम जहली इस्लाम में कैसे मुंतकिल हुआ, पूरी तफसील के साथ मदूदी साहब ने बयान फरमाया और मैं 100% इससे मुतफिक हूँ, इस बात से मुतफिक हूँ जो सैयद मदूदी साहब ने फरमाई है। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब हर बंदे की राय तो होती है ना, जैसा भी हो वो बंदा, अनपढ़ हो जाहिल हो पढ़ा लिखा हो सॉरी। तो जो मदूदी साहब ने फरमाया मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ ये जिस हवाले का उन्होंने जिक्र किया कि ये आपको पता ही नहीं है, ये तो मार्फुल कुरान का है। अब मदूदी साहब मार्फुल कुरान में क्यों नहीं कोई लिख सकते, या मार्फुल कुरान वाले उनका क्यों नहीं कोई इक्तबास ले सकते। अगर ये उन्होंने गलत लिया है तो ये तशरीह कर देते, ये जमात इस्लामी वाले तशरीह कर दे कि ये मदूदी साहब का नहीं है, लेकिन क्यों करें, क्योंकि जो मार्फुल कुरान में उन्होंने बयान फरमाया है वो ये इस कुर्बानी की दलील में दिया गया है, जो घर घर मोहल्ला मोहल्ला गली गली होती है, बात को समझे, इसकी दलील में जो वो मदूदी साहब का रेफरेंस है। तो चले अगर मदूदी साहब का रेफरेंस ना भी हो तो मदूदी साहब तो खुद ये काम करते रहे, जमात इस्लामी वाले खुद ये काम कर रहे हैं अब तक। ज़ाहिर है उनके कायद ने जो कहा, फिर मजहबी पेशवा ने जो कहा है उसके मुताबिक उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते ये लोग। जमात के तौर पे
वसीयत एक जमात के तौर पर ये भी कुर्बानी उसी तरह करती है जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, जिस तरह हम करते हैं, सारे मसलक वाले करते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और अहले तशरीह सभी करते हैं, मदूदी साहब भी करते हैं, मदूदी साहब के पैरोकार भी करते हैं। वही बात मारफुल कुरान ने मदूदी साहब के हवाले से की है। इस पर एतराज मुझ पर कर दिया कि मैंने मारफुल कुरान का हवाला दे दिया, तकी उस्मानी साहब का उनका हवाला दे दिया। तो मेरे भाई बात तो वो जो कर रहे हैं वो तो हकीकत आपके सामने है, वो तो उन फेवर में जा रही है बात। अगर उनका ना भी हवाला तो वो काम तो वो कर रहे हैं, इसमें मेरे मुझ पर कोई इतराज बनता नहीं था। चले खैर तो कोई कर सकता है इतराज इसमें करना। मैंने चाहा कि मैं इसकी भी थोड़ी सी यहाँ वजाहत कर दूं। ये जो मैंने हवाला दिया, गो मैंने मारफुल कुरान को खुद जाके नहीं देखा, मैंने कहीं से ही ये चीज पढ़ी है कि ये मादूदी साहब का हवाला है। और इसी तरह वो जो अगर गलत है तो ये बात वाले बता दें या बंदा तस्सीह मेरी कर दे। जिन्होंने मेरी तस्सीह करने की कोशिश की उन्होंने तो मुझे कहा कि तुम्हें हवाला ही नहीं देना आता, ये तुमने क्या हवाला दे दिया। तो मेरे भाइयों जो मैंने हवाला दिया तो वो तो काम आप कर रहे हैं। मदूदी साहब मेरे दिए हुए हवाले के मुताबिक मदूदी साहब कह रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं, जमात वाले वो काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या बात गलत होगी। और दूसरा जो उन्होंने आगे बात है उस पर तो आपने कोई बात नहीं की। वो जो मनसब तजदीद हकीकत है कि असल इस्लाम जहली इस्लाम में कैसे मुंतकिल हुआ तफसील के साथ, छोटी सी बात है वही कहा। मैं प्रोपोगंडे का इसके मतलब खिलाफ हूँ कि छोटी सी बात को उठाया और उसके पीछे पड़ गए। ये सोशल मीडिया में ज्यादा हो रहा है, लिखने लिखाने में शायद कम हो, सैकोस बाग से हट कर किसी बात को बयान कर दिया। लेकिन अगर थोड़ी सी लंबी ऐसे ही हवाला दिया जाता है ना, अगर आपको थीसिस लिखते हैं जो कोई आप मजमून लिखते हैं तो किसी का आपने हवाला देना हो, कोट करना हो किसी कोटेशन को, तो आप क्या उसका पूरी किताब तो नहीं लिख सकते, या उसने अगर कोई मजमून लिखा तो पूरा मजमून तो नहीं लिख सकते। आपने उसमें से वो थोड़ी सी जो बात आपके मुतल्लिका है आप कर रहे हैं उसको ही लेना होता है। तो ये इतनी छोटी नहीं कि ये 2-3 सफाहात पर मुश्तमिल ये बात है जो मैंने अर्ज की थी, वो भी मेरा वीडियो उसमें शामिल है मेरे चैनल पर। तो बस मेरे भाइयों मैं यही अर्ज आपसे करना चाहता था कि ये एतराज बिल्कुल बिला जवाज है जो मारफुल कुरान का मुझे कहा जा रहा है कि मैंने गलत दिया। मैंने बिल्कुल ठीक दिया और आपका अमल बता रहा है। मदूदी साहब उसी चीज की तायद में वो कह रहे हैं और वो आप कर रहे हैं, गली गली महल्ला महल्ला कुर्बानी कर रहे हैं। तो बस मेरे भाइयों मैं यही आपके सामने अर्ज करना चाहता था। हमने काम कर दिया, अल्लाह उसको अब क्या करता है क्या समझता है ये आपने अगर मालूम क्या समझता है, ये मेरा एक तरह से नवान तो क्या समझता है का मालूम करना है। अब हमने अल्लाह उसे कैसा ले रहा है तो हमें कुरान की तरफ आना पड़ेगा, कुरान से पूछना पड़ेगा तो कुरान उसके बारे में क्या कहता है, उस अमल के बारे में जो हमने अपनी तरफ से बहुत ही आला अमल कर दिया, बहुत ही अच्छा अमल कर दिया। उसके जो ऊपर बाल हैं उलमा कराम जिस तरह बयान फरमाते हैं उतनी नेकियां आपको मिल गई। और वो अगर बकरे पर बैठ करके खैर वहां तो कुछ भी हो सकता है, मरने के बाद पुलसरात आपको ये कुर्बानी उस पर बैठ कर आप पुलसरात को पार करेंगे, आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये बयान होता है। और हकीकत में देखें कि ये क्या है जो हम कर रहे हैं, बात सोचने की है, गौर करने की है। ये इतना मुश्किल काम जो है ये हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं ऐसे मुश्किल कामों में नहीं पड़ते कि जरा गौर कर लें, फिक्र कर लें, कुरान से जरा लेने की बात करें। एक तो कुरान का नाम आते ही अगर सिर्फ मैं कुरान का नाम लूं तो ये फौरी तौर पर पेशानी पर बल पड़ जाते हैं कि ये साल कुरान और सुन्नत क्यों नहीं कहता, कुरान और हदीस क्यों नहीं कहता। फिर लंबा फिर सारे जवाब मिल जाते हैं। जब कुरान और सुन्नत आप कहेंगे, कुरान और हदीस कहेंगे, हाँ जी, फिर आपको हर तरह के जवाब मिलते चले जाएंगे बस। लेकिन जब आप सिर्फ कुरान की बात करेंगे तो फिर वो जवाब खत्म होते जाएंगे, हर चीज खत्म होती जाएगी। पेशवाइयत, मजहबी पेशवाइयत, सरमायादारी, ये वो खानकाहियत, ये सब तसव्वुफ सब कुछ उड़ता चला जाएगा पतंगों की तरह, ये रुई के गालों की तरह ये उड़ता चला जाएगा कुरान के सामने आते। ये फर्क पड़ता है। ये माथे पर बल ना लगाएं, ना लाएं, सलवटे न डालें, कुरान की तरफ आए, कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान में ही है सारा कुछ, कुरान से ही माखूज है दीन, वही दीन ही है असल दीन इस्लाम जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। वो दीन इस्लाम सिर्फ कुरान में से है और कुछ नहीं है। बाकी बहुत बनाई हुई बातें हैं। हाँ, ये क्या अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत बात की है। हाँ, हकीकत
खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। कितनी सादा जुमलों में बात बयान कर दी। ये है हमारी सारी खराबी की वजह। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये है सारी खराबी की वजह। हम सिर्फ कुरान की तरफ नहीं आएंगे, कुरान को कौले फैसल नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरान कौले फैसल, तो हम इस तरह की उलझनों में पड़े रहेंगे। हम अपनी तरफ से पहाड़ जैसे बड़े बड़े नेक काम करते रहेंगे, वो रूई के गालों की तरह उड़ते रहेंगे। अल्लाह के नजदीक वो कुछ भी हैसियत नहीं होगी, पानी का बुलबुला, उनकी कोई हैसियत नहीं। उस काम को जो करना है, देखना है, तो वो आप कुरान से पूछिए कि वो इसके बारे में क्या कहता है। तो बस मेरे भाइयों, ये मैंने अर्ज करना थी। आपकी मेहरबानी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, और सब गोश्त खाएं और ख्याल से खाएं। हाँ, डॉक्टरों का ख्याल ना करें, गरीबों का ख्याल करें। डॉक्टरों का ख्याल आप ज्यादा खाएंगे, बीमार होंगे, डॉक्टरों का ख्याल हो गया, डॉक्टरों के दुकानदारी खूब चमकेगी, अस्पताल और मरीजों से भर जाएंगे, उनकी चांदी हो जाएगी। गुरबा को देने की कोशिश करें अगर हो सके हमसे। मेहरबानी, आपने बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।